देखिए क्या होता है, पेशेंट का गार्जियन को बोल रहे हैं, एक बेटी की बाप को, आदिवासी है, बोल रहे हैं कि वैसा पेशेंट बहुत है, लेना है तो ले जाओ, नहीं तो छोड़ दो। वेंटिलेटर के चलते हम लोग का बेटी आज दुनिया में नहीं रही। बॉडी पार्ट्स वगैरह ले जाने के लिए 1000 रुपये इन लोगों से लिया है। কে কে গিয়েছিল ক্ষেত? আমি ছিলাম, বৌদি ছিল, আর দুটো ছিল, আর এই কাকুটা ছিল। তোমরা 4 জন একা ছিলে খেতে? খেতে এই অল্প আমার থেকে দূরে ছিল, হুম, নামাতে ছিল। হুম। আমরা একঠিনেই ছিলাম, আমার থেকে অল্প দূরে গেছিল ছেলেটা। ওইখানে মানে দূরে আফার উপরে ছিল? না, পড়াশোনা মানে ও ঘর আসতে খুঁজছিল। আচ্ছা। আম- তো জল পড়ছিল তখন? তখন অল্প অল্প পড়ছিল, আর আওয়াজ করছিল কি? আওয়াজ শুনেছিল। না, হচ্ছিল মানে নাকি? হ্যাঁ, তখন ঘর আসবার জন্য ইয়া করছিল। হ্যাঁ। তখন ও আওয়াজ হয়েছে, তারপর মানে আওয়াজ হয়েছে, তখন আমি ছাতা ফুটেছিলাম, ওটা ছাড়ে বৌদিকে বললাম কি যে ছেলেটা কোথায় গেল। হুম। তখন দুজনা মিলে ওইদিকে ছেলেটা আমরা দৌড়ে চলে গেল। মানে ও পড়ে গেছিল? হ্যাঁ, পড়ে গেছিল। বৌদি টৌদি তো আমাকে ওইখানে ছাড়িয়ে দিল, ও ঘর চলে আসছে বলতে, ঘরের লোককে ডাকতে? ডাকতে। কি নাম ছিল ছেলেটার? প্রণাম, নামে সরেন। তুমি কে হলো ওর? হ্যাঁ, ওর পিসি। ওর পিসি? হ্যাঁ। হুম। আর এই ওর দাদি। তোমরা 4 জনই ছিলে না? হুম। কেমন ছিল ছেলেটা? কাজ করতো ঘরে? ভালো? ঘরে কাজ করতে ওই অল্প হালকা ফালকা। মানে এইটা ক্ষেত গেছিল কাজ করতে? ও এক ঘড়ি করে যায়, এক ঘড়ি না, একটা পর্যন্ত। बीते कुछ दिन पहले, यानी कि कल, हमारे चैनल के माध्यम से एक पोस्ट किया गया था। एक आदिवासी लड़की जो कि खेत में धान रोपाई के क्रम में काम कर रही थी, उसी समय ठनका का छाया लगने के कारण वो बेहोश हो गई। आनन फानन में परिवार के लोग उनको घर लाया गया और उसके बाद तुरंत उनको शहीद निर्मल महतो हॉस्पिटल, जिसे पीएमसीएच के नाम से जाना जाता है धनबाद में, वहाँ इमरजेंसी हॉल में एडमिट किया गया। उस समय डॉक्टर के माध्यम से कहा गया कि स्थिति नाजुक बनी हुई है, इनका रेफर करना ज़रूरी है। तो बाकी उन 2 दिनों में क्या घटना हुआ, परिवार के लोगों से जानने का कोशिश करते हैं। उसके बाद पल पल की जो घटना घटी, सब बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले जानिए कि इतनी लचर व्यवस्था के कारण एक होनहार बेटी का आज दिया बुझ गया। सोच भी नहीं सकते हैं, जबकि घटना 22 तारीख को हुआ था और आज यानी कि 24 तारीख को जब घर से कोई पेशेंट जाता है हॉस्पिटल की ओर, तो उम्मीद जागता है कि वापस ठीक होकर करके आएगी, लेकिन लौट के आया उनका लाश। सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं कि क्या हुआ 2 दिन में और स्थिति कैसे इतना भयावह हो गया कि हम लोग को ग्राउंड रिपोर्टिंग करने में भी बहुत मरमाहत हो रही है। কি নাম? রবিলাল। তুমি ওর বাবা? হ্যাঁ। কি হয়েছিল সেদিন? সেদিন ও মানে ধান রুইতে গেছিল, মানে ও কোনো সময় যায়, ঘরে থাকে তো না, পড়ালেখা করে। পড়ালেখা করে? হ্যাঁ। তো সেদিন গিয়েছিল, তো ও মানে জল পড়লো হালকা প্রথমে, আর ও মানে ঘর আসছিল, যেমনি মানে ক্ষেত থেকে উঠেছে, মানে হালকা জল পড়ছিল, ক্ষেত থেকে আড়ে উঠেছে, কিছু দূর ফারাক হয়ে গেছে ওদের থেকে, যারা ছিল আরও ক্ষেতে, বেশি দূরে নাই, সামনে ছিল। তো হয়ে গেল, আওয়াজ হয়ে গেল,
বিজি ইটো হুম বজ্জড়, হুম তো ও পড়ে গেল এসে পড়া, মানে আওয়াজ শুনে, হুম লেকিন পড়ে গেলে তো বেহুশ হয়ে গেল। হুম বেহুশ হয়ে গেল তো ফির আনলাম ওইখান থেকে ঘর, খাট ঠাট নিয়ে হুম ঘর আনে আপনার করলাম, মানে ডাক্তারকে নিয়ে গেল। ডাক্তার একটু কম্পাউন্ডারকে বললাম, তো ও বলছে হসপিটাল লেখ, এখানে তো হবে নাই। তো আমরা লিখলাম কোথায়, ধানবাদ পিএমসি, ওইখানে যাই অ্যাডমিশন করাইলাম। তো ডাক্তার কি বললো? ডাক্তার কোনো বলে নাই সেদিন, তো একদিন বাদে মানে কিছু ঠিক লাগছিল, মানে ভালাভালি করছে, যেটা পুরো বেহুশ ছিল। মানে যখন অ্যাডমিশন করাইলে হুম। তো ডাক্তার চিকিৎসা করলো, হুম। তারপরে কিছু বলছিল যে এখানে হবে কি না? না, প্রথমে বললো কি হ্যাঁ नहीं लेंगे, ले जाओ। मतलब यहाँ नहीं ठीक होगा, ले जाओ। हाँ, फिर रांची। रांची ले जाओ, हाँ, रिम्स। हाँ रेफर कर रहे हैं। हाँ तो আমরা বলছি थोड़ा तो उपाय कर दीजिए, हाँ तब लेके तो जाएंगे। তো বলছে ঠিক है, সাইন টাইন করাইলো, হুম সাইন করার পরে রাখলো, এখানে দাওয়াই পত্র সব দিল। रेफर नहीं করলো। তখন নাই কইলো, সাইন করাইলো, বলছে ঠিক আছে রাখি। हाँ তো मतलब বলছে যে সাইন করে দাও कि হুম, मेरा रिक्स नहीं है, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই, ওটুকুই। पेशेंट आप अपने रिक्स में হুম, हॉस्पिटल में छोड़िए। ছড়িয়ে হ্যাঁ। अच्छा ठीक है। তো তারপরে কিছু মানে যেটা বেহুশ ছিল ওটা খালি চোখটা খুললো, ভালাভালি করছিল। 23 তারিখে হস আইলো, হুম, মানে 23 তারিখ সকালে সকাল থেকে মানে পাইছে। হস এসে গেছিল, হুম, ভাইল ছিল, হুম, হাত পা লাড়ছিল। লাড়ছিল। গল্প করেছিলে তুমি? না ছেলেটার সঙ্গে হ্যাঁ না, গল্প সল্প করে নাই, খালি ভাই ছিল একবার করে, আর খালি লড়ছিল, বাস ওইটুকুই, আচ্ছা, মানে রাসা কিছুই নাই। মানে রাসা কিছু না, না খালি না ভাইল ছিল, লড়ছিল। হ্যাঁ। फिर তো তারপরে ওর থেকে আর কোনো ঠিক হয় নাই, আরো মানে যত তারপরে যখন 23 তারিখ হলো তো ডক্টরে আরো কিছু যাঞ্চ করেছিল ওর? जांच तो करे নাই, डॉक्टर को बोले छी, तो बोलছে अरे दवाई तो चल रहा है, ठीक हो मतलब जाएगा। डॉक्टर के যখন বলতে গেলে তখন ডক্টর কি বলছে? হুম, दवाई तो चल रहा है। হ্যাঁ। আচ্ছা। उसके बाद বলছে আমরা তবে আমরা মনে মনে করছি যে তবে এখান থেকে অন্য হসপিটাল লিখবো নাকি। হুম, তো আমরা গল্প সল্প করলাম, তো হ্যাঁ তবে তবে অন্য হসপিটাল লিখবো। হুম, আমরা কত কোথায় লিখবো, তবে রিমস লিখবো। হুম। तो डॉक्टर सेठो सीधा एलम, तो बोलছে कहीं भी ले जाना है तो ले जाइए। मतलब मेरा रिस्क नहीं है। हाँ, अब ले जाना है तो हम कागज रेफर कागज बना देते हैं हुँ, तुरंत। हुँ। नहीं फिर तो क्या? रखना है तो रख लीजिए, हम नहीं बोलेंगे कि ले जाओ। मतलब डॉक्टर भी बोल रहा है कि हम नहीं बोलेंगे ले जाओ, हाँ, ले जाना है तो ले जाओ। ले जाओ हाँ, रखना फिर है तो रखिए। हुँ, वैसा पेशेंट बहुत है। ऐसा पेशेंट बहुत है। हाँ, 3-4 गो है पेशेंट, तो এরকম বলছে। अगर हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी देख रहे हैं ना, तो अपने सिस्टम को देखिए। आप लोगों को ऐसा जवाब नहीं मिलेगा। जो पेशेंट लेके जाते हैं और आप तो सख्त हिदायत दिए हुए हैं कि हम जैसे चैनल वालों को नो एंट्री है हॉस्पिटल में। देखिए क्या होता है, पेशेंट का गार्जियन को बोल रहे हैं, एक बेटी की बाप को, आदिवासी है, बोल रहे हैं कि वैसा पेशेंट बहुत है, लेना है तो ले जाओ नहीं तो छोड़ दो। ये बोलने का तरीका है एक डॉक्टर का। पीएमसीएच हॉस्पिटल जो राज्य में अपने आप में एक पहचान रखता है, रिम्स के बाद अगर कोई है तो वो है पीएमसीएच। वो खुद बोल रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा। बड़ा बड़ा पोस्टर और बैनर तो खूब चमकता है जिला में, स्वास्थ्य क्यों नहीं चमकता है? किससे बात नहीं हुआ था? শুনলি নাকি তোমাকে ফোনও করেছিল বিধায়ক জি? কেউ কোন বাত করাই দিয়েছিল? কোনো লোক ফোন করেছিল? আপনার সঙ্গে বাত করেছিলাম। অপর্ণা সেনগুপ্তা ফোন দিয়ে করেছিল? হ্যাঁ, হুম, তো বলছে ঠিক আছে, ডাক্তারকে ফোন করছি, হুম, ইলাজ হয়ে যাবে। আচ্ছা। খালি অতটুকুই বললো, আর কই? আর কেউ তো আর ফোন কারো করেনি। সঙ্গে কেউ তোমার সঙ্গে কথা করেছিল? না, আর কথা করা নেই। কথা করেনি। না। খালি খবর লিছিল ফোনে। হ্যাঁ, কেমন আছে পেশেন্ট, পেশেন্ট সিরিয়াসই আছে। এর ওষুধ তো পত্র দিছে না নাই? इतना खबर अगर डॉक्टर को लेना था ना, तो आज ये बेटी जिंदा होती।
जितना खबर आप खाली सांत्वना सांत्वना दे रहे थे, वो खबर खाली डॉक्टर को ले लेते ना कि पेशेंट को देखिए, तो आज जिंदा होती बेटी। ये घटना आज के হচ্ছে কি? ঘটনা আজ 9টা সময় হয়েছে। সকালে ঠিক ছিল? সকালে মানে হালকা ঠিক ছিল, মানে আজ শ্বাস সকালে চোখ মানে খুলছিল? মানে চোখ তো মানে রাতে অল্প বন্ধ হয়ে গেছে, খালি শ্বাসটা ছিল। তখন থেকে তো ওদেরকে বলছি कि ऐसा ऐसा ये আচ্ছা, রেফারের জন্য কি সুবিধা ছিল? রেফার তো कागज बना एम्बुलेंस दिया। नहीं? एम्बुलेंस एम्बुलेंस नहीं ছিল, मतलब वो सिस्टम नहीं है हम लोग का यहाँ, वेंटिलेटर सिस्टम। सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, जो उनके साथ में भी थे उससे भी जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है रविशर मुर्मू, हुँ। इसी गाँव का रहने वाले हैं। अच्छा, क्या आप वहाँ हॉस्पिटल में थे? हाँ, फर्स्ट दिन जो हम गए थे एडमिट करने के लिए हम ही गए थे। हुँ। तो वहाँ गए हम लोग करीब 2:30 बज रहा था, 2 ढाई हुँ। बज रहा था, दिन में? दिन में हुँ। 22 तारीख को। हुँ। तो गए वहाँ पर जाके हम लोग देखे, व्यवस्था ठीक था जाने के दिन। एडमिट कराए, इमरजेंसी रूम में घुसाए पहले। पेशेंट को देखा हम लोग, बाद में उन लोग बोला क्या हुआ, क्या नहीं, हम लोग बताए देखो ठनका से बेहोश गई है। तो ठीक है, आप लोग रिपोर्ट बनाइए, एडमिट बनाइए। बनाए तो डॉक्टर को बोले क्या करें? तो डॉक्टर वो देखिए, बहुत नाजुक है, स्थिति बहुत गंभीर है। हम तो बोलेंगे इसको रेफर कर रहे हैं यहीं से, पहले दिन से वो बोल रहा था डॉक्टर, रांची ले जाओ। वो किसी प्रकार का रिपोर्ट जाँच किए थे? नहीं, रिपोर्ट तो जाँच नहीं हुआ था। जब रिपोर्ट जाँच नहीं किए थे डॉक्टर साहब, एक उँगली अगर ब्लड निकलता है तो उसको 3 बार सैंपल भेजते हैं जाँच करने के लिए, कि बिना जाँच का इलाज नहीं होगा। तो पेशेंट को बिना जाँच करके कैसे बता दिए कि स्थिति नाज़ुक है? डॉक्टर हैं और इतना भी नासमझ दुनिया नहीं है, जो जनता नहीं समझ पाती है। आप बिना रिपोर्ट चेक किए, बिना जाँच किए, बिना कुछ किए कैसे बता दिए स्थिति नाज़ुक है? जबकि लड़की का सुधार भी हो चुका था, उसके अगले दिन उसका पिताजी का कहना है कि वो हाँ, देख भी रही थी, हाँ, वो तो हाथ-पैर भी चला रही थी। चला रहा था, बोला कि हम भी सुने। हाँ। तो डॉक्टर हमको बोला यही चलो इसको रेफर कर रहे हैं। हमने कि सर देखिए, हम लोग उतना दूर से आए हैं, जब यहाँ से हम लोग रांची जाएँगे कम से कम तो 4-5 घंटा टाइम लगेगा ही। हुँ। तो कुछ आप इसमें उपाय कर दीजिए। डॉक्टर को बोले? हम डॉक्टर को बोले। हुँ। तो ठीक है हम लोग कर रहे हैं। हुँ। तो आप लोग यहाँ कागज़ को सिग्नेचर करिए कि एडमिशन करो, हम लोग रिस्क में कुछ नहीं होगा। ये पेशेंट आप लोग का रिस्क में रहेगा। ठीक है, आप लोग कुछ तो देखिए पेशेंट का। हुँ। ठीक है, तो हम तो उस दिन तो हम घर चला आए। फिर रात को तो जब एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने के लिए बोले तो हुआ नहीं, व्यवस्था? उस दिन नहीं हुआ था। मतलब 22 तारीख को नहीं हुआ नहीं व्यवस्था? हुआ था, हम कॉल किए थे एम्बुलेंस को। हाँ। एम्बुलेंस को कॉल किए हैं तो एम्बुलेंस वाला बोली कि चलो डॉक्टर से बात कराओ। हुँ। डॉक्टर से भी बात कराएँ। हुँ। क्या वो लोग बोला, हुँ। फिर बाद में कॉल लगा रहे थे, 108 में कॉल नहीं लग रहा था। ठीक है। बात भी कराए थे उसको। हुँ। कॉल नहीं लग रहा तो हम उसको बोले, जब उस टाइम रात भी हो गया, 11:30 लगभग बज रहा था, चलो बोले चलो आप लोग रहो, हम तो आ रहे हैं, फिर सुबह आएँगे। हुँ। फिर सुबह रात को उसको फ़ोन किए, कैसा है? मुझे थोड़ा-सा आगे से कुछ अच्छी है लड़की, अच्छा, पैर वगैरह चला रही रुक-रुक है। मिचका रही है। हुँ। तो हम बोले ठीक है, भगवान की कृपा अच्छा है, हुँ। काम हो जाए तो ठीक है, आप लोग को उम्मीद भी था कि ठीक हो जाएगी? ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को बोले थे, देखिए रिक्वेस्ट किए थे उसको, करो कुछ। तो बाद में फिर सुबह कॉल आ रहा कि नहीं डॉक्टर जवाब दे रहा है, चलो ले जाओ, हमको रेफर कागज़ भी बनाया था, हम सुने। हुँ। तो रेफर कागज़ बनाया, जो एम्बुलेंस मँगाए, एम्बुलेंस में हुँ। वेंटिलेटर सही नहीं था। इसी के चलते हमारा जो आज बेटी है, तो यही बोलेंगे हमको, उस वेंटिलेटर के चलते हम लोग का बेटी आज दुनिया में नहीं रही। यही मेरा बोलने का ये है, कुछ नहीं बोलेंगे। आपको क्या लगा? व्यवस्था में कमी लगा कि नहीं हाँ, लगा? हमको कमी लगा बहुत। जब स्वास्थ्य केंद्र में अच्छा उसका गाड़ी अच्छा नहीं रहेगी, तो कैसे चलेगा हम लोग का, बोलिए? धनबाद जैसा हॉस्पिटल, जो जिला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, हुँ। वहाँ अगर एम्बुलेंस वेंटिलेटर वाला नहीं रहेगा, तो पेशेंट किस स्थिति में जाएगा तो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा। डॉक्टर क्या समझेगा? पेशेंट पेशेंट ही होता है, डॉक्टर डॉक्टर ही होता है, हम तो देखें। जब किसी को ले जाएँगे यहाँ से रांची, तो उसके लिए तो व्यवस्था होना चाहिए। हुँ।
उसका गाड़ी में अच्छा नहीं तो पेशेंट वहाँ के आपको लेके क्या लगा कि इलाज के अभाव में गया हुआ? हाँ, एकदम 100% हम बोलेंगे यही। उतना तो सीरियस कंडीशन में थे भी नहीं। नहीं थे। जब पैर और अगर लड़ा रही थी लड़की, चोट मिचका रही थी, तो हम लोग को उम्मीद हो गया था कि चलो भाई हम लोग भगवान अच्छा किया। फिर आप लोग को उम्मीद लगा कि बच्ची ठीक हो हुँ, जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका रिजल्ट दूसरा हो गया। दूसरा हो गया। हम आज को गए थे। आज गए थे, हुँ। तो घटना होने के बाद गए थे, पहले गए? घटना होने के बाद बाद गए थे। क्या देखे वहाँ? उसको हम देखे कि लाश देखे कि मतलब इस दुनिया से व्यवस्था के अभाव में हुआ। व्यवस्था नहीं सही नहीं था, व्यवस्था के अभाव में हुआ ये घटना। घटना हुआ। डॉक्टर जो बात कर रहे थे, हुँ। बिहेवियर कैसा था आप लोगों के साथ? व्यवहार तो अच्छा ही किया, बात क्या नॉर्मल में बात कर रहा था, ऐसे कोई कि कोई बात करता है हम लोग से नहीं होगा, ये नहीं कि नहीं, वैसा बात नहीं किया था कि अच्छा ही किया था। अच्छा बात व्यवहार अच्छा बोल रहा था, देखो हमसे नहीं होगा, हम बोले चलो आप लोग डॉक्टर हैं, हुँ, एक भगवान है, हुँ। कुछ रहम कीजिए इसमें, कृपया कीजिए, उतना दूर हम लोग जाएँगे, जाने के तो व्यवस्था होना चाहिए अच्छा। यही बोले। आपको ऐसा नहीं लगा कि आप लोग आदिवासी और गरीब होने के चलते आप लोग का उस इस तरह से जाँच नहीं, स्वास्थ्य का इलाज नहीं हो पाया? लगा कि नहीं लगा? उसमें क्या बोलेंगे देखो, हॉस्पिटल होता है भाई, गाँव होता है। उसमें थोड़ा कुछ हम लोग तो उतना जानकारी नहीं ना रहता है, जानकारी का अभाव भी। अभाव भी होता है, देहात होता है, वो अगर शहर हो गया, इसलिए हमको किसी को जाते हैं तो किसी को पूछते हैं, ये होता है, वो होता है, ऐसा-ऐसा बात है। अब तो हर जगह जाते हैं और आपके बगल में ही इस प्रकार का घटना हो गया और इलाज के अभाव में एक बेटी का जान चल गया। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप लोग आए, इस इतना दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटा इसका कवरेज करने के लिए, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और विगत 2026-27 में झारखंड सरकार द्वारा जो चिकित्सा के लिए जो बजट पास हुआ है, वो है 7,990 करोड़। तो मेरा बोलना है कि आज का जो व्यवस्था है, चाहे वो चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज़ पर देखने को मिलता है। हालाँकि सरकार हम ही लोगों का है, हम लोग भी सरकार में हैं। लेकिन कहीं न कहीं सरकार अधिकारियों के ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। इसमें थोड़ा-सा नज़र देने का ज़रूरत है सरकार को। ख़ास करके चिकित्सा क्षेत्र में एसएनएमएमसीएच जो है हमारे शहीद निर्मल महतो जी के नाम को ही बदनाम किया जा रहा है। क्योंकि आज जो धांधली चलता है हॉस्पिटल में वो हम लोग जानते हैं भली-भाँति। और धांधली खाली हॉस्पिटल का अधिकारी लोग नहीं करता, वहाँ उपस्थित जो आरक्षी निरीक्षक महोदय लोग रहता है, यानी पुलिस का आदमी जो लोग रहता है मर्चरी में, इस घटना के माध्यम से हम संज्ञान में जब लिए कि वहाँ पर क्या-क्या स्थिति पैदा हुआ, तो पीड़ित परिवार के तरफ से सुनने को मिला कि वहाँ जो आरक्षी में बैठा हुआ था, वो लोग लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रांची तक पहुँचाने या कुछ भी बॉडी पार्ट्स वगैरह ले जाने के लिए 1,000 रुपया इन लोगों से लिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे ज़िला के एसपी जी से, जो एसपी साहब हैं, आपसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि थोड़ा इस बात को संज्ञान में लीजिए। वहाँ आदमी मर्चरी में जब जाता है, पोस्टमार्टम के लिए जाता है, तो अपना सीना के ऊपर पत्थर रख के वहाँ तक जाता है। किसी का बेटा मर जाता है, किसी का बेटी मर जाती है, किसी का पत्नी चल जाती है। उस अवस्था में, उस परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति से, किसी पीड़ित परिवार से पैसा लिया जाए, वो भी वेतनधारी पुलिसकर्मी के द्वारा, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना होता है उस समय के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय हमारे एसपी साहब से आग्रह करूँगा कि इस पर अंकुश लगाया जाए, चूँकि दिन प्रतिदिन हमारे हॉस्पिटल जो जिला के नहीं राज्य का दूसरे स्थान पर आता है, उसमें बहुत बड़ा धांधली चल रहा है, बहुत बड़ा रैकेट, बहुत बड़ा स्कैम ही बोल सकते हैं हम लोग। अखबारों में और विज्ञापनों में देखने में बहुत अच्छा लगता है। मान के चलिए कुछ दिन पहले हमारे धनबाद के डीसी महोदय देश के टॉप 10 में नाम पर आए थे, आदित्य रंजन जी, जो कि पूरा देश में जितना आईएएस ऑफिसर है, डिप्टी कलेक्टर, वो टॉप 10 में नाम पर आए थे। और उसी का क्षेत्र का ये घटना है, स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था। हमारे चैनल के माध्यम से भी वो डीसी साहब को भी टैग करके दिखाया गया था
कि इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट को उच्च स्तरीय जाँच किया जाए, उच्च स्तरीय व्यवस्था किया जाए। सीएम साहब का भी था, हॉस्पिटल के नाम पर भी था, विधायक के नाम पर भी था, सांसद के नाम पर भी था, सिस्टम के नाम पर भी था। और बता दें, जो इतनी बड़ी घटना हुआ, ये पूरी न पूरी सिस्टम के लिए ही हुआ है नेताजी। नहीं देखिए, कुछ-कुछ बात जो है पूरा-पूरी दोष अगर सिस्टम पर मढ़ दीजिएगा तो ये कहीं न कहीं हम लोग गलती करेंगे। मैं बोलना इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि वहाँ से देखिए अब सरकार कुछ बजट पास कर रही है, सरकार कुछ देखने के लिए हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वहाँ क्या स्थिति पैदा हुआ। आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में अगर कोई जानकार व्यक्ति है, वो अपना काम निकालना चाहता है, तो पैसा देने का प्रलोभन वहीं से स्टार्ट होता है। जानकार व्यक्ति ही घूस देता है। अनजान व्यक्ति को पता ही नहीं कि हम घूस कहाँ पर दें। इसीलिए जो जानकार व्यक्ति लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, उन लोगों को देखना होगा सबसे पहले। लाचार व्यवस्था पैदा कहाँ से हुआ? लाचार व्यवस्था हमसे आपसे ही पैदा हुआ। मेरे पास पैरवी है, मेरे पास जानकार वाला व्यक्ति है, मैं पैरवी दे के अपना ट्रीटमेंट करा लिया। दूसरे का जो अनजान है, गरीब-गुरबा परिवार से आता है, आदिवासी, दलित समुदाय से आता है, वैसे लोगों को जो है ये देखना पड़ता है ये दिन। ये हम लोग भी जानते हैं, लेकिन लाचार व्यवस्था को क्रिएट करने में कहीं न कहीं मेरे जैसे आदमी, आपके जैसे आदमी, जो जानकार समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग होते हैं, वही लोग होते हैं। व्यवस्था में सुधार लाने के लिए केवल सरकार और सिस्टम और अधिकारी नहीं कर सकता। इसके लिए हमको, आपको, सबको आगे आना होगा। हर क्षेत्र में विरोध करना होगा। आज आप देखिएगा कि जहाँ भी जिसका पहचान है, वो सबसे पहले आगे आ जाता है। जिसको पहचान नहीं, जिसको जानकारी नहीं है, वो पीछे ही रह जाता है। ये सत्यता है, तो इसको स्वीकारना ही होगा। इससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। बाकी चिकित्सा के लिए जो प्रोटोकॉल होता है, चिकित्सकों का जो नियम होता है, उस आधार पर चिकित्सक लोग जो है रिटर्न पर लेते भी हैं परिवार से, परिवार के गार्जियन से। वो उनका प्रोटोकॉल है। चूँकि किसी तरह का अनहोनी होने के बाद पब्लिक उसके ऊपर डिमांड कर देता है कि हम तो आपको दिए नहीं थे, लिए नहीं थे। ये ऐसा मूवमेंट हो जाता है, हम लोग देखे हुए हैं। इसीलिए पूरा-पूरी दोष सिस्टम का नहीं है, कहीं न कहीं हम लोगों का भी दोष है। ठीक है।